देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे आईएमएफ कहाँ पर है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, जो फैक्चुअल थिंग है। और देखिए वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। इफ यू वांट टू सिंपली गेट होल्ड ओवर दीज बेसिकली फैक्ट, देन ऑब्वियसली यू कैन सर्च ओवर इंटरनेट, यू विल बी एबल टू गेट इट. But when it comes to working of the IMF, obviously we need to put a lot of mind in terms of understanding that how the International Monetary Fund is actually working at a global level. देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, IMF इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो पहला पॉइंट क्या है, IMF किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है. सेकेंडली, it is headquartered in Washington, DC. DC is what? District of Columbia, consisting of 190 countries as a member. So do remember, India was one of the founding member of the International Monetary Fund. Okay. Its stated mission is what? देखिए, इनका मिशन जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा डिफाइन कर रखा है. बट मैं आपको बताऊं, द मेजर वर्क दैट इज बीइंग डन बाय IMF इज व्हाट आई विल टेल यू आउट ऑफ दीज. वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. देखिए, जब मैं IMF के काम करने के तरीकों को देखता हूँ, so what I am able to understand, that is one of the most important tasks done by the IMF. That is what they want to provide financial stability at a global level. ठीक है, that's why at a global level, International Monetary Fund is also being called as a watchdog of the international liquidity के नाम से भी इसे जाना जाता है. That it is something which is supposed to take care the liquidity not only at a basic or you can say at a domestic level but at a international level also. So if a question will come in a prelims examination, then who is being called as a watchdog of the international liquidity, then the answer is what? International Monetary Fund. ठीक है, तो बहुत सारे काम है IMF के, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको देखने को मिलेगा इनका टाइम टू टाइम, दैट इज व्हाट? That is about securing the financial stability at a global level. Okay. Moreover, as you know, it was formed in 1944, started on 27 December 1945 at the Bretton Woods Conference. So, as I told you in the last class, that IMF and World Bank both were set up together at a Bretton Woods Conference. That's why these have been known as a Bretton Woods Twins. ठीक है, ये इनकी एक टर्म है. इसके अलावा देखिए, जब IMF के काम करने के तरीके को जब डिजाइनिंग की बात की जाती है, तो दैट वाज बेसिकली डन बाय समबडी कॉल्ड हैरी डेक्स्टर वाइट एंड J.M. Keynes. So one of the most renowned economists at a global level we ever had on this world, that was J.M. Keynes. अब देखिए, बहुत सारी बात इनकी मानी भी गई थी और बहुत सारी बात इनकी नहीं भी मानी गई थी व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग दी IMF. जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ. सो व्हेन दी IMF वाज फॉर्म्ड इन 1944-45, G.M. Keynes, sir, said that we need to adopt an artificial currency for the purpose of working of the International Monetary Fund. And the name of that currency that he suggested was Bancor. But I'm telling you, they never adopted. And they said कि whatever amount of loan that we want to provide to the member country, we will simply take care of it with the help of gold and moreover the US dollar. तो G.M. Keynes साहब ने बोला कि देखिए साहब, दोनों ही चीज एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है ग्लोबल लेवल पे, बाय विच यू कैन सिंपली फुलफिल द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. तो मान के चलिए, आपका ये जो सिस्टम है IMF का, वो काम नहीं कर पाएगा. ओके, बट दे सेड नो, वी विल टेक केयर ऑफ इट. बट फाइनली द सेम थिंग हैपेंड इन 1969 when the International Monetary Fund adopted something called Special Drawing Right, और यू कैन से समथिंग कॉल्ड XDR, जो इसको आप SDR या XDR के नाम से जानते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार. Okay, special drawing right that was simply launched by IMF in 1969. अब देखिए काम कैसे करता है, वो आने वाले डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा. Now if you see here, it came into formal existence in 1945 with 29 member countries and the goal of reconstructing the international monetary system. ठीक है, अब देखिए, अगर सिंपल एक लाइन में मैं आपको बताऊं IMF का काम क्या है, तो आप मान के चलिए इनका सिंपल काम एक ये है कि जो भी मेंबर कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी ज्यादा. बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस व्हाट? दिस थिंग, इट इज दी समथिंग काइंड ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री रिगार्डिंग दी फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड फॉरेन करेंसी आउटफ्लो, कि इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, अगर देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, यानी कि फॉरेन करेंसी आ कम रही है और it is going more out of your country, then obviously
you're going to face a problem in terms of taking care your imports and the other things. Getting what I'm trying to say? तो पॉइंट ये है कि IMF नॉर्मली आप मान के चलिए ज्यादा एक्टिव तब होता है जब किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं in terms of balance of payment. Getting for example, when Greece faced the financial crisis, when Pakistan faced this issue in the current time, when Sri Lanka is being facing the same issue, when the Bangladesh was also facing the same issue, or you can say as a precautionary measure, Bangladesh also took a loan from this International Monetary Fund. The same thing happened in case of our country also when we borrowed from IMF in 1990s. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी कंट्री में बीओपी इश्यूज होते हैं, बीओपी क्राइसिस होते हैं, that time you can say IMF is being kind of more active in terms of helping that particular country. I hope you're getting what I'm trying to say here. ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं. Now, if we talk about the leadership in the IMF currently, then the current managing director and chairwoman of the IMF is Bulgarian economist called Kristalina Georgieva. ठीक है, एक चीज देखिए आपको ध्यान रखनी है, IMF की जो एक यूनिक बात है जिसको लेके हम थोड़े से IMF से खफा रहते हैं, that is what? That as I told you in the earlier class of World Bank, that World Bank is always headed by whom? By the person from USA. ठीक है, बट जब भी आप बात करेंगे IMF की, so IMF is always headed by somebody from European Union. तो इनको हेड करने वाला आपको हमेशा कहां से मिलेगा? Somebody who's being part of European Union. That person is basically heading the IMF. तो इंडिया वाले कहते हैं कि भैया जब आप इसे वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहते हैं, so why not somebody from India? Why not somebody from Brazil? Or why not somebody from China or some XYZ country? Why not that particular person is heading the IMF? बट मान के चलिए जैसे कि IMF में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग यूएस और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की है, इसीलिए उनकी ही सबसे ज़्यादा सुनी जाती है. ओके, नॉर्मली इफ आई टेल यू why the USA is having a maximum amount of influence over this particular, the IMF, because USA is currently holding more than 17% of the voting power in the IMF. और देखिए नॉर्मली क्या होता है जब वोटिंग पावर की आप बात करते हैं, यूज करने की, डिसीजन लेने की, तो आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं, सो अंडर दैट वी हैव हाफ मेजोरिटी और वी हैव 3/4 मेजोरिटी. बट हियर यू नो व्हाट हैपेंड, there is a certain important decision in the IMF which is being taken with the help of 85% majority basis. और 85% majority में सिंपल क्या बात है कि अगर किसी कंट्री के पास 15% से ज्यादा वोटिंग पावर है, then that country is going to be really powerful in the agency. Same thing with the USA also. तो यूएसए की जो शेयर होल्डिंग है और जो वोटिंग पावर है अराउंड 17% के आसपास बनती है, इसीलिए मान के चलिए IMF में सबसे ज्यादा सुनी किसकी जाती है? इट इज द USA who is being listened, I would say the most, and they have the complete amount of hold over the working of the IMF. ठीक है, that is a one point. Now अगर आप बात करेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है IMF की, क्योंकि देखिए IMF क्या है, बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है, टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्रीज की फाइनेंशियल कंडीशंस को फॉलो करता रहता है, इसीलिए यू विल ऑलवेज फाइंड that the IMF is in news. ठीक, इसीलिए चीफ इकोनॉमिस्ट जो भी IMF का होता है, मान के चलिए दैट पर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट वी हैव ऑन दिस अर्थ. जैसे अभी रिसेंटली मान के चलिए गीता गोपीनाथ वाज द इंडियन अमेरिकन. ध्यान रखिए इंडियन नहीं है, अमेरिकन है, बट शी वाज some sort of connection with India. That's why she is being known as an Indian American economist, Geeta Gopinath, who previously served as chief economist, was appointed as the first deputy managing director. So ये थी, but she is not a kind of chief economist because she is being elevated to the post of first deputy managing director. Okay, that is again obviously a comparatively better post in comparison to chief economist, but उसकी अपनी अलग point है. Now who is the current chief economist of the IMF? The person is Pierre Olivier and this Gorinchers. So she replaced, or he replaced, I'm not pretty sure, okay, that replaced Geeta Gopinath as the chief economist on 24th of January 2022. Okay, अब देखिए आगे बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि when it comes to the head of the IMF, it is always coming from where? From the Europe. तो देखिए सारे के सारे आपको हेड मिलेंगे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज से. सो स्टार्टेड विद कैमली गट बेल्जियम,
Ivar Ruth, Sweden, then France, Netherlands, France, Germany, Spain, France, and then again we have somebody from Bulgaria, okay, Kristina Georgieva, okay. इनमें से देखिए एक जो काफी डिफरेंट पर्सन थे, जो काफी न्यूज में भी थे अपनी चेयरमैनशिप के टाइम पे, उनका नाम है डोमिनिक स्ट्रॉस कान। देखिए ये अलग क्यों थे, एंड आई वुड से दैट ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ। द रीजन बिहाइंड इट that he was basically into some sort of scandal, you know, that when he was staying in New York in one of the hotel, then one of the waitress over there, she said that he basically misbehaved with her, and he basically also tried to some sort of, you know, sexual assault kind of the charges was made against this particular person by that waitress from the New York hotel. तो मान के चलिए उसके ऊपर काफी कुछ बवाल हुआ था, काफी कुछ वो न्यूज में रहा था, और उसके बाद दिस पर्सन बेसिकली रिजाइंड, ओके। तो देखिए ये तो बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर की। अब देखिए जब आप डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो वो आपको मिलेंगे हमेशा यूएसए से। अब देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं, सो ऑल द पीपल आर बेसिकली फ्रॉम यूएसए। सो एज यू कैन सी, गीता गोपीनाथ, अमेरिकन, प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। सो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड दे बीइंग प्रोवाइडिंग। और बाकी लोगों की बात करेंगे तो देखिए दे आर ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड मोर ओवर द बेस्ट पर्सन अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, दोज हु हेल्ड दिस पोजीशन इन दी पास्ट, ओके। अब देखिए इसके बाद अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिस्ट की, तो इकोनॉमिस्ट भी मेनली आपको यूएसए से मिलेंगे, बट यस वी हैव एन एक्सेप्शन हियर इन द नेम ऑफ सर रघुराम राजन, हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रॉम 2003 to 2007 ही वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। उसके बाद देखेंगे गीता गोपीनाथ, अगेन सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद इंडिया, एंड अदरवाइज इफ यू सी द रिमेनिंग पर्सन देयर इज नो वन। तो कह सकते हैं अगर आप एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे कनाडा है, इजराइल है, इंडिया है, फ्रांस, एंड देन वी हैव अगेन फ्रांस, ओके। दैट मीन्स majority of the time this particular post is also being held by whom? By somebody from USA only. Getting what I'm trying to say? अब देखिए बात करते हैं वोटिंग शेयर की। वोटिंग शेयर में अगर आप आईएमएफ की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है यूएसए। एज आई टोल्ड यू, दे हैव अराउंड 17.43% ऑफ द कोटा, एंड दैट इज गिविंग देम अ वोटिंग शेयर ऑफ अराउंड 16.5%. देन जापान 30,820 million XDR, and that is the share of 6.47. So if you see, India is at 8th place, and that is what we have, 2.75% of the quota. That is giving us the kind of voting power of 2.63%. अब देखिए पॉइंट क्या है, हम इंडिया वाले क्या कंप्लेन करते हैं टू दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम कहते हैं सर देखिए, at a global level, if we talk about India, then we are 5th largest country on this globe in terms of nominal GDP. और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी की, देन वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंट्री एट अ ग्लोबल लेवल। तो हम ये क्वेश्चन उनसे करते हैं, when we people are being such a big country at a global level, then why our share is less than Italy, who is basically comparatively smaller than us, France, and moreover these two countries specifically, because UK we recently kind of crossed. तो आप कह सकते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन 3 कंट्री के जो शेयर होल्डिंग है वो हमसे ज्यादा क्यों है, एंड इंडिया इज लाइक दैट इफ यू बेसिकली अलॉट अस मोर अमाउंट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट, देन वी विल सिंपली buy it and we will pay for it. So the second problem that we have with the International Monetary Fund is what, that we want more amount of shareholding from the IMF side. अभी देखिए 2022 में hardly there was any kind of change that was made regarding the India's shareholding. hardly कुछ भी नहीं बढ़ा है, तो ठीक है। तो पॉइंट क्या है, हम कहते रह गए और हमें कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिल पाया है। So with the 13,114 million XDR, we people are being able to get votes of around 1,32,603. अब जैसे मैंने आपको बताया 85% की यहाँ पे voting power, that is means some important decision are supposed to be taken with the 85%. So that's why USA is the most powerful country in case of IMF. Getting what I'm trying to say? अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है आपकी SDR की,
स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। अगर ब्रीफली मैं देखिए यहां पे आपको बताऊं, 1944 में जब आईएमएफ स्टार्ट हुआ, 45 में फॉर्मली यू कैन से, they said कि when any country who is basically member to the IMF, when that particular country will face any kind of problem with the balance of payment of the other, then the International Monetary Fund will provide them loans. Loans will be given in the form of gold, or you can say in the form of US dollar. But as you know, both the things which are available at a global level was very limited. So that's why that system was not able to work. And then after that, what happened? From 1969, they adopted a system called SDR. देखिए, सिंपल भाषा में और सरल भाषा में अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं कि आईएमएफ काम कैसे करता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आईएमएफ में जो एसडीआर है वो एक तरीके का एक शेयर है। जैसे आप लोग इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसी आईएमएफ का जो शेयर है उसका नाम है एसडीआर। ठीक है। अब देखिए, इंडिया में शेयर मार्केट में आपको शेयर परचेज करने के लिए क्या पे करना पड़ता है? दैट यू नीड टू पे इंडियन रुपी फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग शेयर। यहां पे इन्होंने क्या किया है, एसडीआर के अंदर दे सिंपली पुट सर्टेन करेंसीज विच आर एक्सेप्टेबल एट ए ग्लोबल लेवल, नोन एज अ हार्ड करेंसी। अब देखिए, एसडीआर की अलग अलग टाइम में अलग अलग करेंसीज की कितनी कितनी वेटेज है, क्या उनकी वैल्यू है, ये सब यहाँ पे दी गई है। So as you can see, whatever page you people are being able to see here, that I've taken from the Wikipedia only. Okay? तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर करंट की बात करें, क्योंकि देखिए पुराने को छोड़ देते हैं क्योंकि करंट ही हमें ज्यादा जानने की रिक्वायरमेंट है। So currently you can say in one SDR, that means if any country wanted to become member of IMF, they need to purchase SDR and they have to pay for it. ठीक है। तो अगर आपको 1 SDR खरीदना है तो उसके लिए आपको $0.57 देने पड़ेंगे, यूएस डॉलर, 0.37 यूरोपियन यूनियन के यूरो देने पड़ेंगे, चाइनीज करेंसी के 1.09, जैपनीज येन के 13.45 एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का 0.08 पाउंड यू नीड टू पे। सो व्हेन यू पे दिस यू विल बी एबल टू गेट 1 SDR। तो एक तरीका क्या है कि आप पांचों करेंसी में इक्विवेलेंट पे कर दीजिए और SDR परचेज कर लीजिए। और अगर आपके पास बाकी करेंसी नहीं है, यू हैव ओनली वन पर्टिकुलर करेंसी, देन व्हाट यू कैन डू, जो भी कन्वर्जन बनता है इन करेंसीज का एक दूसरे के साथ, उनको कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज यू नो दिस थिंग, वी हैव द एक्सचेंज रेट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी करेंसी एट ए ग्लोबल लेवल। कन्वर्जन कीजिए, देन यू हैव द नंबर, पेमेंट कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट SDR। ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। किसी कंट्री ने 100 SDR खरीदे और उसके लिए उन्होंने इन सारी करेंसीज में पेमेंट करके SDR ले लिया। अब देखिए SDR क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको आर्टिफिशियल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब पॉइंट इन पेपर का फायदा क्या है मुझे, देखिए, व्हेन एनी कंट्री विल फेस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ BOP, तो क्या कर सकते हैं वो, इन पीस ऑफ पेपर को, जो आर्टिफिशियल गोल्ड है, इनको सामने वाली मेंबर कंट्री के पास प्लेज करके या गिरवी रख के वो लोन ले सकते हैं। दैट मीन्स यू नीड टू प्रोवाइड योर SDR टू द अदर कंट्री। जैसे एग्जांपल लीजिए, इंडिया को जरूरत है, इंडिया ने जापान के पास गिरवी रखे और जापान ने क्या किया, उनके बदले में जो भी उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो हमें लोन के रूप में दे दिया। ठीक है। सो इन दिस केस, एज वी बोरिंग फ्रॉम जापान, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि हमने पेपर रख के करेंसी ली है, जिन्हें आप बोलते हैं फ्रीली यूजेबल करेंसीज। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, पेपर गिरवी रख के, SDR गिरवी रख के आपने लोन लिया है। तो जब आप लोन लेंगे देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो आप कह सकते हैं जापान विल रिसीव इंटरेस्ट एंड इंडिया विल पे इंटरेस्ट। जब हम जापान को उनकी करेंसी लौटा देंगे, जो भी हमने उनसे उधार लिया है इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या करेंगे, हमारे SDR हमें रिटर्न कर देंगे। दैट इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन। बट देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नॉर्मली मेरे से पूछते हैं वो क्या है कि सर, अगर मैंने 100 SDR खरीदे और मान लीजिए इन सबको कन्वर्ट करा मैंने डॉलर में, एंड फॉर 1 SDR आई पेड, लेट्स सपोज $1.5,
यानी कि सर मैंने $150 पे करके मैंने 100 SDR परचेज कर लिए। अब सर जब मैं इन 100 SDR को गिरवी रखूंगा तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे? मुझे $150 मिलेंगे। तो सर कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले $150 दिए इन पीस ऑफ पेपर को खरीदने के लिए, फिर बाद में उतने ही अमाउंट का मुझे लोन मिला, तो सर फायदा क्या हुआ? व्हाट इज माई बेनिफिट हेयर? और देखिए लॉजिक एकदम ठीक है, क्योंकि जितना आपने पे किया उतने का ही आपको लोन मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या चीज है? जितने डॉलर अगर आपको लगता है कि मुझे किसी प्रॉब्लम के टाइम में चाहिए होंगे, तो कंट्री में क्या करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को कुछ मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक रूम में रख के लॉक लगा दो कि भैया जब विपदा की घड़ी आएगी तब इन डॉलर्स को हम इस्तेमाल करेंगे, गेटिंग, और वी विल यूज दिस फॉरेन करेंसी व्हेन वी विल फेस अ प्रॉब्लम, गेटिंग। तो सर कोई फायदा नहीं है इसका मतलब आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए। अब देखिए पॉइंट क्या है, आईएमएफ पेमेंट कैसे लेता है। अगर आपने 100 एसडीआर परचेज किए और आपने $1.5 यहाँ पे एक एसडीआर की वैल्यू है इन सबको कन्वर्ट करके, सो अंडर दैट 25% of the payment that you need to make of this $150 you need to make in these five currency or any one of the hard currency, and the remaining 75% of the payment you have to make in your domestic currency, यानी कि आपको अपने इंडियन रुपी में पेमेंट करनी होगी टू बाय दोज एसडीआर। यानी कि बाइफर्केशन क्या हुई, 25% पेमेंट आपने करी हार्ड करेंसी में और 75% पेमेंट करी आपने अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। अब देखिए अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि आपने पेमेंट रुपी में करी है बट आपको लोन किस में मिल रहा है, यू हैव बीन गेटिंग लोन इन दी हार्ड करेंसी हियर, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर बेसिकली वर्किंग। अब देखिए दो टर्म्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं आईएमएफ में समझने के लिए, वो क्या है। एक टर्म का नाम होता है आपका, इफ आई टेल यू हियर, वन टर्म इज नोन एज अ रिजर्व ट्रेंच पोजीशन एंड द सेकेंड इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रेंच पोजीशन। ये दो वर्ड हैं जिनको लेके मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जो एग्जाम्पल यहां पे मैंने आपको दिया है, whatever 25% of the payment that you have made in your foreign currency, it will be known as a reserve trench position, और जो 75% पेमेंट आपने करी है फॉरेन कर अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर रुपी में, दैट विल बी नोन एज अ क्रेडिट ट्रेंच पोजीशन। बहुत ही सिंपल है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन क्या है, जो आपने फॉरेन करेंसी के अंदर पे किया, और क्रेडिट ट्रेंच पोजीशन क्या है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू पेड इन दी योर डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री, then these SDRs are also being included. Getting what I'm trying to say? So that is what we have. तो IMF का काम करने का तरीका देखिए बहुत ही सिंपल है। आप पहले SDR परचेज करेंगे, उसके लिए आप पेमेंट करेंगे जो भी उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू है, और हर 5 साल में एक बार में इनको रीवैल्यू या फिर रीअसेस किया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस दे आर रीअसेसिंग द वैल्यू? जिस कंट्री की प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ती जाएगी, यानी कि दैट कंट्री विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, उसका शेयर आप मान के चलिए आपका एसडीआर में बढ़ता चला जाएगा, सो दैट इट विल बेसिकली रिप्रेजेंट दी इकोनॉमी इन ए प्रॉपर मैनर। इंडियन रुपी आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। और कब इंडियन रुपी इसमें शामिल होगा, दैट वी ऑल्सो कांट कमेंट एट ऑल इन दिस पार्ट, ठीक है, क्योंकि वी रियली डोंट नो अबाउट इट। बट 2016 से पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे केवल 1 2 3 4 करेंसी थी, डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। बट 16 में दे इंट्रोड्यूस ए न्यू करेंसी ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द चाइनीज युआन, विच इज ऑल्सो नोन एज रेम्बिनी। ओके, तो चाइनीज युआन का आप देखिए वेटेज, इट वॉज 10.92% अर्लियर, बट इन द रीसेंट रीवैल्यूएशन दे इंक्रीज इट टू 12.28%। यानी कि चाइना का दबदबा ग्लोबल लेवल पे बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएस में, तो यूएस की करेंसी कम हुई है, बट इफ यू सी द वेटेज ऑफ यूएस डॉलर हैज आल्सो बीन इंक्रीज एंड द रिमेनिंग 3 हैज बीन डिक्रीज, एज यू कैन सी 30.93 से 29.31 हो गया है। जापानीज का देखेंगे 8.33 से 7.59 हो गया है,
और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज डिक्रीज फ्रॉम 8.09% टू 7.44%। ठीक है, अब इन 5 में 6 कब होंगी? सो इफ यू थिंक कि 2027 के बाद जब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन जाएगा, या फिर 2032 के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा, so maybe if the Indian economy currency will also become internationalized and we will also have acceptability of our currency, because ध्यान रखिए दो चीजें होती हैं, one is called internationalization of currency and the second is called as that your currency is fully convertible। तो हमारी करेंसी दोनों ही तरीके से अभी कहीं पे भी इतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाई है, एंड वी आर स्ट्रगलिंग। ओके, so in case if the things will become better in the upcoming time, then certainly you can say that things will be even, the Indian rupee may be part of it, and our currency will also being accepted। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप, कहने की मतलब क्या है? तो देखिए, मैंने इस लेक्चर में आपको क्या बताया इन टुडेज लेक्चर, आई सिंपली टोल्ड यू अबाउट द बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द IMF। और देखिए क्यों हुआ था ये मैंने आपको लास्ट वर्ल्ड बैंक की क्लास में बताया था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज द एंटायर वर्ल्ड वाज फेसिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द रिकंस्ट्रक्शन पर्पस, सो दैट्स व्हाई द वर्ल्ड बैंक वाज मेड, and they were also facing problem because they also need to import certain things from outside, so that's why you can say this IMF was created to provide the short term loan। तो यहाँ पे लोन आपको 7 से 12 साल के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यू आर बीइंग एबल टू गेट अ लोन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो छोटे पीरियड के लिए मिलता है। एंड मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊं 93 या 94 के बाद से इंडिया नेवर बोरोड फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो टुडे वी आर नॉट सपोज टू पे इवन अ सिंगल डॉलर बैक टू द IMF। सो वट एवर वी बोरोड एंड वी हैव ऑलरेडी पेड बैक टू देम। ठीक है, तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करी, इकोनॉमिस्ट हमने उनके हेड के बारे में बात करी, हमने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करी, फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द चीफ इकोनॉमिस्ट। देन वी हैव द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, देन द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसमें अच्छी बात जो थी, जो लोग काफी खुश थे इंडिया में, एंड दैट इज अबाउट द गीता गोपीनाथ। देन द लिस्ट ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट, अ पर्सन फ्रॉम इंडिया, रघुराम राजन सर वाज आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट, देन रशिया, देन ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरेबिया, स्पेन, मैक्सिको एंड नीदरलैंड। दीज आर द टॉप 15 कंट्रीज। और हमसे ज़्यादा की बात करेंगे तो यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। तो चाइना को भी कंप्लेन है, ऐसी बात नहीं, चाइना इज ऑल्सो नॉट कंप्लेनिंग कि सर मैं जब वर्ल्ड लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हूँ, देन व्हाई नॉट आई एम ऑल्सो हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट देखिए बहुत डिफरेंस रह नहीं गया है, 6.4, 6.47। बट इफ यू सी व्हाट वी हैव, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हाट वी हैव हियर। तो सोचिए अगर हमें इनसे ज्यादा अलॉट हो जाएगा, देन वी विल बिकम इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज। गेटिंग? तो IMF की लेक्चर के बारे में मुझे आपको केवल इतना बताना था, एंड मोर ओवर आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द SDR कि वो वर्क कैसे करते हैं एंड हाउ द लोन्स आर बीइंग बेसिकली